Good morning, students. Today we will start with our revision classes for with chapter 1, A Letter to God. See question number 1. Who does Lencho have complete faith in? Lencho को पूरी तरह से किसमें विश्वास था? Which sentence in the story tell you this? और ऐसा कौन सा वाक्य है जिससे आपको इस कहानी में इस बारे में पता चल रहा है? The whole story revolves around Lencho's complete and unshakable faith in God. लेंजो को पूरी तरह से विश्वास था ईश्वर में. The following sentences in the story further establishes the same without any doubt. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. मतलब पहली पंक्ति में बोलता है, हे ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे. He wrote to God on the envelope, put the letter inside. उसने लिफाफे पर ईश्वर लिखा और पत्र को उसके अंदर रखा. And still traveled went to town. और अभी भी परेशान होता हुआ वह कस्बे की ओर चला गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Now see question number 2. What is question number 2? There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature, and between humans and themselves. How are these conflicts illustrated? अर्थात यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर इस कहानी में दो कॉन्फ्लिक्ट थे, मनुष्य और प्रकृति के बीच और मनुष्य और उनके बीच. तो ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से वर्णित किए गए, डिस्क्राइब किए गए हैं? तो सी द आंसर. The story primarily talks about two major conflicts on multiple layers. The conflict between human and nature, and that is not in anyone's power to stop. The conflict between two humans due to the lack of trust and faith that human beings are capable of doing good to one another. The first conflict is illustrated in the form of heavy rains accompanied by a hailstorm that was responsible for destroying complete Lencho's crops. यहाँ पर ये बताया गया है कि एक ईश्वर का मतलब एक व्यक्ति का ईश्वर के प्रति विश्वास था कि जो एक व्यक्ति दूसरे के प्रति कैपेबल हो सकता है, अच्छा कर सकता है. तो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है वो हैवी रेन के बारे में बताया गया है, जो कि ओलावृष्टि से पूरी तरह से प्रभावित था और वह रेस्पॉन्सिबल था लेंचो की पूरी फसल को नष्ट करने के लिए. Lencho was a hard-working, honest man who needed the money from the harvest to feed his family, but rain and hailstorms had completely destroyed his crops. The second conflict between human is established when, through the postmaster's act of generosity and Lencho's inability to see the same. The postmaster is so moved on seeing the letter by Lencho to God, decide to raise as much money as possible with the help of the remaining postmaster and send it to Lencho. He was in no way connected to Lencho, yet this act was that of complete generosity, humility, and selflessness. However, instead of the being lauded for their magnanimity, Lench blames them for taking away some of the money and calls them a bunch of crooks. This reveals how to little faith Lencho had in humans. Now see question number 3. Why does the postmaster send money to Lencho? postmaster ने Lencho को पैसे क्यों भेजे? Why does he sign the letter God? और उसने लिफाफे में जो लेटर लिखा उस पर गॉड के सिग्नेचर क्यों किए? The postmaster is completely moved and amazed at Lencho's unending faith in God. postmaster पूरी तरह से प्रभावित हो गया था Lencho के कभी न टूटने वाले ईश्वर के प्रति विश्वास को देखकर. As he read the man's letter to God asking him for money, he was driven to do anything he could help Lencho. At the same time, he also wished. उसी समय उसकी भी इच्छा नहीं थी that he had so much faith in God, कि उसमें उसका भी ईश्वर बहुत अधिक विश्वास था. He decided to stick to his pledge even though he knew Lencho had asked for money. Therefore, he decided to collaborate with the remaining postmaster and try to raise as much money as possible to help Lencho.
और इसी प्रकार के ईश्वर के प्रति लेंचो के विश्वास को देखकर पोस्ट मास्टर ने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे कुछ पैसा इकट्ठा करना है ताकि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहे, और इसके लिए उसने अपने पोस्ट ऑफिस के सभी लोगों से, अपने मित्रों से बात की कि वो चैरिटी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करे, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसे दिया। So to keep alive the trust Lencho has in God, he also signed the letter as God. और लेंचो के विश्वास को जागृत रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने जब वो पत्र लेंचो के नाम लिखा तो उसमें भी ईश्वर के रूप में हस्ताक्षर किए। He also signed the letter as God so as not to share Lencho's faith in God. अब आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बैक्स भी पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन एक नंबर के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में आता है। तो हम एक पैराग्राफ आपके लिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। जैसे कि पैराग्राफ दिया गया आपको, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए ग्लोब हिल। घर जो एक एकांत घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी किनारे पर बना हुआ था, वो घर किसका था? लेंचो का था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ टाइफून। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए मक्का के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से सजे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और इस प्रकार के खेतों को देखकर लगता था कि सब लेंचो की जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। The only thing that needed was a downpour or at least a shower. केवल पृथ्वी को एक चीज की आवश्यकता थी, हल्की बौछार की बूंदाबांदी की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately and had done nothing. लेंचो जो कि अपने खेतों को पूरी तरह से देख रहा था, जानता था उनके बारे में, वह सुबह से वर्षा की उम्मीद किए हुए बैठा था। उसने सुबह से कोई काम नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ, बल्कि उत्तर पूर्व की ओर वह आसमान में देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और वह अपनी स्त्री से बोलता है कि निश्चित रूप से अब हमें कुछ बरसात हमारे खेतों में होगी। यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा। इसने कहा ये द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन पका रही थी, उसने जवाब दिया। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 4। जैसे वेयर वाज लेंचोस हाउस लोकेटेड? लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? लेंचोस हाउस वाज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। जैसे कि यहाँ भी मैंने आपके लिए आंसर लिखा है, लेंचोस हाउस वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज लेंचोस वाइफ प्रिपेयरिंग? लेंचो की वाइफ क्या प्रिपेयर कर रही थी? तो लेंचोस वाइफ वाज प्रिपेयरिंग सपर। यहाँ पे आंसर दिया गया प्रिपेयरिंग सपर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस वेरी क्लोजली। वेरी क्लोजली बहुत अच्छी तरह से, मतलब इंटीमेटली। यहाँ एक वर्ड दिया गया कि इंटीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेस्ट मींस द टॉप पार्ट ऑफ ए हिल। यहाँ पे पूछा गया क्रेस्ट का मीनिंग होता है सबसे ऊपरी शिखर, किसी भी पहाड़ी का एक सबसे ऊपरी शिखर क्या कहलाता है? क्रेस्ट। एक और आपके लिए एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इट वाज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. ये क्वेश्चन आपके CBSE में 2012 में पूछा जा चुका है पैराग्राफ। इसमें क्वेश्चन देखिए आपके, what could be seen approaching in the northeast? नॉर्थ ईस्ट में क्या आता हुआ देखा जा सकता था? Huge mountain of clouds could be seen approaching in the northeast. Now see question number 2. Why did Lencho go out? Lencho बाहर क्यों गया? अब यहाँ पर आपको दिया गया है to have pleasure of feeling the rain on his body. तो आप लिखेंगे Lencho went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए बाहर गया। Give an antonym. Antonym मतलब क्या होता है? समाना, विपरीत आपका शब्द मतलब बिलोंग शब्द। तो यहाँ पर big का क्या होगा? Big means बड़ा, small means छोटा। Which word in the passage is a synonym of forecast? Forecast का मतलब होता है भविष्यवाणी, means predict। यहाँ पर दिया गया predict। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, Who was Lencho? Lencho कौन था? Lencho was a hard working farmer. What were his main problems? उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी? This question has been asked in 2015.
who lived in the crest of a low hill. Due to the hailstorm, his crops were destroyed. Hailstorm के कारण उसकी फसलें क्या हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी. So he needed money to sow his field again. इसलिए उसको अपने खेतों को दोबारा जोतने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए उसे पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता थी. These were the main problems of लेंचो. और यही लेंचो की क्या थी, मुख्य समस्याएं थी. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है. Give a brief description of view from Lencho's house. Lencho's house was situated on the crest of a low hill from where everyone can see the river and field of ripe corn from here. और वहाँ से मतलब लेंचो का जो घर था वो कहाँ था, एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी शिखर पर बना हुआ था और वहाँ से उस पहाड़ी पर खड़ा होकर कोई भी वहाँ से बहने वाली नदी और मक्का के फूलों से सजे हुए खेतों को आसानी से देख सकता था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What did Lencho compare the raindrops to and why? लेंचो ने बरसात की बूंदों की तुलना किससे की है और क्यों की है? This is also an important question. It has been asked in 2012 in CBS. Lencho compared the raindrops to new coins because the crop needed the rain badly. क्योंकि फसलों को बरसात की बहुत अधिक आवश्यकता थी and it was the sign of good harvest. और यह एक अच्छी फसल का प्रतीक भी था. Good harvest means prosperity for लेंचो. और अच्छी फसल का मतलब है लेंचो के लिए समृद्धि होना. As he needed the money to fulfill his basic needs. क्योंकि उसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसकी आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी. इसलिए जब बरसात की बूंदें गिरी तो उसने एक तरह से उन्हें चांदी के सिक्कों के समान समझा क्योंकि उससे उसे क्या मिलने वाली थी, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली थी. See next question. Why did Lencho write a letter to God? लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? Lencho's crops were completely destroyed by the hailstorm. He wrote a letter to God because he was the only hope in his despair. क्योंकि यही एक उम्मीद थी उसकी निराशा के समय. लेंचो asked him to send 100 pesos और लेंचो ने ईश्वर को 100 pesos भेजने के लिए एक पत्र लिखा ताकि वह अपने खेतों को दोबारा से बो सके एंड सपोर्ट हिज फैमिली और अपने परिवार की मदद कर सके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की? पोस्टमास्टर वाज डिटरमाइंड टू हेल्प लेंचो. ही डिड नॉट वांट लेंचोस फेथ इन गॉड. वह लेंचो के विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था. टू बी शेकन सो ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स टू हेल्प लेंचो. He also contributed a part of his salary for this act of charity. Now see next question. How much money did Lencho need? लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी? How much did he get? अब यहाँ बताया गया था हमने जैसे कि चैप्टर में कि लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी. उसने जो ईश्वर को पत्र लिखा था उसमें उसने 100 pesos की मांग की थी. लेकिन जब पोस्टमास्टर और वहाँ के एम्प्लॉइज ने धन इकट्ठा किया तो 70 pesos वहाँ इकट्ठा हुआ था. वही हम सेंटेंस में इस आंसर में लिखेंगे. Lencho got 70 pesos. He was angry at the differences. Needed 100 pesos to sow the crops again. क्योंकि उसे अपनी फसलों को बोने के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 100 pesos की आवश्यकता थी. लेकिन उसे कितना मिला? 70 pesos. इसलिए वह काफी नाराज हो गया. Till the next harvest. Next question. Why did Lencho not want the money to be sent through mail? This question has been asked already in 2016 CBSE. और यहाँ पूछा गया है कि लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि उसे अब ईश्वर जो पत्र जो पैसे भेजेगा वह डाक के माध्यम से भेजे. लेंचो wrote in his second letter. लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में लिखा. क्या लिखा उसने? That he received only 70 pesos. कि उसे केवल कितने pesos मिले हैं? 70 pesos मिले हैं. And he needed 100 pesos. और उसे कितने पैसों की आवश्यकता थी? 100 pesos की आवश्यकता थी. He requested God not to send rest of the money by post, since the post office employees were a bunch of crooks and would steal the money. और वे उसके पैसों को चुरा लेंगे. See question number 8. Do you think that Lencho was right to call the post office employees a bunch of crooks? क्या आप सोचते हैं कि लेंचो सही था कि उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को bunch of crooks कहा था, बदमाश लोगों का एक ग्रुप? Why or why not? क्यों या क्यों नहीं? Lencho called the post office employees a bunch of crooks as he did not get full money that he had demanded. He could not believe that God had sent him any less money, but so he doubted these people. But he was not right to call them a bunch of
crops. अब नीचे आपके लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, who was Lancho at what circumstances forced him to write a letter to God. ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां लेंचो के सामने उत्पन्न हुई कि उसे ईश्वर को एक पत्र लिखना पड़ा, जो कि हम ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं कि लेंचो की फसल अच्छी नहीं हो रही थी, उसने उम्मीद की थी कि बहुत अच्छी बरसात हो, लेकिन बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि हुई, उसके फलस्वरूप उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। अब नष्ट हो गई तो उसका आजीविका चलाना भी काफी कठिन हो गया, अपने परिवार का पालन पोषण करना काफी कठिन हो गया। तो उसने क्या किया, उसने ईश्वर को पत्र लिखा कि वह 100 पीसों से मदद के रूप में चाहता है, ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और अपनी नई फसल बो सके। अगले हार्वेस्ट तक के लिए उसने 100 पीसों की मांग की। तो ये सभी चीजें इस क्वेश्चन के आंसर में दी गई है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। यहाँ लेंचो का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा गया है कि लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। लेंचो वाज अ सिंपल मैन, लेंचो एक साधारण व्यक्ति था, एंड ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। वह एक बैल की तरह अपने खेतों में काम किया करता था, वह बहुत कठिन मेहनत अपने खेतों में किया करता था। Lencho's entire crops were badly destroyed by the hailstorm, so he became very sad. इसलिए वो काफी hailstorm के उसकी फसल नष्ट हो गई, तो वह बहुत दुखी हुआ। As he was worried about his family, he was an optimist person. Although his only source of living was taken away, he didn't lose hope. He had his last hope in God. He was confident